Good morning to all of you. Today we are starting our third chapters, that is D block transition elements. That chapter is very important on the behalf of the stabilities of the metals. Okay, and I hope you heard few have knowledge related to the D block elements. These elements are very important on the behalf of the color productions as well as the formation of their complexes. And in your syllabus, the lots of question is coming from the stability, like why the Cu+1 is not stable, why Cu+2 is more stable, why the second ionization energy of Cu+2 is more than first ionization comparison to Cu+1. The next one is two compound in your syllabus, one is the potassium dichromate and KMnO4, and their balancing equation in acidic and neutral mediums are very important. You have already done the both kind of reactions, okay, in your 11th classes, but here something is different. So today we are starting the introductory part, but the whole chapter and 60% chapter is covered by the introductory parts, because most of the questions are coming in between this introductory part. So we just starting from there D block elements. So you know that there is a S and P block is here, and D block is lies in between them. Okay, so the S block contain 1 and 2. Okay, so here the P block is starting from 2, 3 to 18. But here from 13, 14, 15, 16 to just after that all, the another one we are say third day to fourth. If you are talking about the A, B sections wise, so the transition element is started from the third day to the seconds B. Okay, इसको second B तक रखा गया है. So why they are known as the transition elements? Transition elements. Why the D block elements are generally known as the transition elements? Because transition means when the properties are changing, when we are moving from one phase to the another phase. तो कोई भी चीज जब एक प्रॉपर्टीज से दूसरी प्रॉपर्टीज में चेंज होती है तो उसको कहते हैं ट्रांजिस्ट होना, जैसे ट्रांजिशन स्टेट होती है. ओके, व्हेन वन स्टेट इज चेंजिंग इनटू द अनदर स्टेट, दैट इज नोन एज अ ट्रांजिशन. इसका ट्रांजिशन हो रहा है. व्हेन यू आर सेंडिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस थ्रू अ बैंक, okay, via just electronics way, so that is known as a transition. So same as well as here the S are highly metallic in nature, okay, and you know the P blocks are non-metallic in nature. These are non-metallic. So what happened? So here the metallic properties are disappearing or changing when we are moving S to P. So D block elements are metallic, but less comparison to S block. They are metallic but higher is comparison to P block. So when we are moving from S block, D block to P block, so the properties are transiting, properties are changing when we are moving from S to D and D to P. So that's why these elements are lying in between S and P block when we are moving from S to P. So their properties are also changing. These properties, and due to the changing of the certain kind of properties, these elements are known as the ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जब आप S से P ब्लॉक की तरफ को मूव करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉपर्टीज उनकी चेंज होती है. तो इस तरह से जो प्रॉपर्टीज में लगातार S से P ब्लॉक की तरफ को मूव करने पे जो चेंजेस आते हैं, दीज आर नोन एज दी ट्रांजिशन. ये ट्रांजिशन चल रहा है, प्रॉपर्टीज का चेंजेस चल रहा है. बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ द D ब्लॉक, द लॉट्स ऑफ वेरिएशंस आर कमिंग. Then you are seeing how the atomic size is first of all decreasing, then constant, then suddenly increasing. So due to this, their properties are gradually changing when we are moving top to bottoms and left to right in the periodic table. So that's why they are known as the transition elements. And the specialty of this transition element is they are colored compounds. Here we are seeing DD transition. The electrons are jumping from D to D orbitals, okay, and sometimes the ligands is attached with the central metal atom, so P to D orbitals. So that's why they are known as the transition elements. And their general electronic configuration is n-1, D, 1 to 10 and ns2. इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इंटर होंगे वो आपके कहाँ होते हैं? D से 10 के बीच में. D में 1 to 10 के बीच में, you know the D subshells D already have, the D orbitals have 5 subshells, 1, 2, 3, 4, 5. So at least the capacities of collecting the electron is 10. So one shell is carrying 2 electrons, so 5 shells carry the number of 10 electrons. And here S or subshells is also here, they carry 2 electrons. So the shiftings of
the electron in D subshells as well as in L S subshells is take place. That is the specialties of this metallic. अगर आपने S और P ब्लॉक का देखा होगा तो उसके केस में जो इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होती है वो लास्ट वैलेंस शेल्स में होती है, बट यहाँ दो वैलेंस शेल्स हैं. The one S is also and another one D is also. That is the important character properties of the D transition elements. तो यहाँ पे कोई एक वैलेंस शेल्स नहीं होती, यहाँ पे दो वैलेंस शेल्स की तरह बिहेव करती है. One is S, the another one is D. So the electron is jumping from D to S or S to D, and those electron is coming from outside. They are also entering D as well as in S. So that's why here the fixing of electron and the entering of electron is take place in S as well as the D. Okay. So these are the properties. Another properties is the D transition element is generally made up of 4 series, or generally here we are talking about the lots of series. Third series, okay, third series, fourth series, fifth series, but we are not talking about the sixth one because वो F block में आते हैं. F block इसी का part है, तो हम इसको फिर से study करेंगे. So here we are talking about the few series on the behalf of some properties. Okay, so let's guys, we are starting our transition elements. Okay, the first properties of the transition element is electronic configurations. So today we are only talking about three properties: electronic configurations, atomic and ionic radii, and the next one is your ionizations, enthalpy. So these three properties are very important because the lots of questions is arising on the behalf of their ionizations, because you are seeing here the lots of variations when you are moving from left to right in periodic table according to their periodic properties. So see, we are talking about their electronic configurations, and you know the electronic configurations is generally is B1 minus 10 NS2. तो इस तरह का electronic configurations आप देखेंगे. Okay, we just starting from our thirds groups. So first of all we are talking about the from scandium. Scandium is the most important things. Scandium से ये क्या होगा, generally start होगा, scandium से start होगा, तो ये कहा जाता है थर्ड सीरीज बोली जाती है. थर्ड सीरीज में सबसे पहले आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक. सो ये गाइस फर्स्ट सीरीज, थर्ड सीरीज है, और फर्स्ट सीरीज है डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की. सो हियर द इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इनटू 3D ओके सबशेल्स. तो 3D सबशेल्स के हिसाब से जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशंस है वो इसका क्या होगा, 3D1 4s2. इसका क्या होगा, धीरे धीरे d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाइए, 3D2 4s2. फिर देखिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, 3D3 4s2. बट हियर द क्रोमियम इज अ एक्सेप्शनल केस. दिस इज 3D5 4s1. The next one is manganese, 3D5 4s2. Here iron is 3D6 4s2. Cobalt is 3D7 4s2. Nickel is 3D8 4s2. But again a different configuration of copper is like to be chromium, 3D10 4s1. And the last one is zinc, 3D10 4s2. यहाँ पे जो सीरीज है इसमें आपका क्या है, केवल क्रोमियम और कॉपर, दो एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ड्यू टू देयर डी ऑर्बिटल स्टेबिलिटी. इनकी जो डी सबशेल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए ये ऐसा करते हैं. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर दैट वन. सो दैट सीरीज इज नोन एज अ थर्ड सीरीज transition metals. So third series the electron are entering into 3D1. The next one we are talking about the fourth series. Fourth series, okay, just we are starting from the fourth series from here, yttrium. These are elements belong to the fourth transition series. Yttrium, zirconium, nickel,
molybdenum, technetium, rubidium, rhodium, palladium, silver and cadmium. These are also very important. You know that is a special element, technetium. What is the meaning of the technetium? Technetium means artificially synthesized. तो पूरी ट्रांजिशन सीरीज में एक ये टेक्नीटियम एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसको ह्यूमन बीइंग्स ने लैब्स में तैयार किया, साइंटिस्ट ने. So that why his name is technetium. और technetium का मतलब ही होता है artificially synthesized. तो ये artificially synthesized है, other are naturally occurring. So their electronic configurations are lying. इनका जो electronic configurations होता है वो आपका क्या करता है, lies करता है. Their electronic configurations are lines also here. So इनका electronic configurations की अगर हम बात करते हैं तो इनका electronic configurations it should be started from ये 4 सीरीज का है तो ये 4 that is 4D 4D1 ये 5 हो जाएगा 5s2 ओके. फिर क्या होगा आपका 4d2 5s2 but after this 2 the properties of the element is gradually changing. इसके बाद का जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है. जैसे केवल d ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे 4d2 and 5s1 4d4 5s1 4d5 5s1 4d6 5s1 and 4d7 5s2 and 4d8 5s2. बट जनरली क्या होगा उसके बाद स्टेबिलिटी गेन करने के लिए AG में क्या होगा 4d10 5s0 and the next one is 4d10 okay. इसके बाद भी यही होगा 4d10 then one is 5s2 okay. Here the silver and cadmium is showing exceptional behavior. यहाँ पे आपका क्या होगा जनरली सिल्वर और कैडमियम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग से क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा. द नेक्स्ट वन इज द 5th ट्रांजिशन सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम द हॉफमेनियम्स. यहाँ पे क्या होगा आपका हॉफमेनियम से स्टार्ट होगा. हॉफमेनियम से स्टार्ट होते हैं लैंथेनियम सीरीज इसको कहा जाता है, लैंथेनियम देन हॉफमेनियम. सबसे पहले लैंथेनियम आएगा फिर आपका क्या आएगा हॉफमेनियम्स. इसके बाद आपका आगे बढ़ते हुए हमारे 3 ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे जनरली क्या है इंपॉर्टेंस है. द 3 ट्रांजिशन स्टेट एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद आपको अदर ट्रांजिशंस के एलिमेंट्स की जरूरत नहीं क्योंकि वो सारे एफ ब्लॉक्स की तरफ को मूव करते हैं ओके. तो यहाँ पे क्या होगा लैंथेनियम आपका 52 में और हॉफमेनियम स्टार्ट होता है 72. तो 52 एटॉमिक नंबर और 72 एटॉमिक नंबर के बीच में बाकी के एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो एफ ब्लॉक में चले जाते हैं बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इंटर इन एफ ब्लॉक. तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का रहता है. तो वो हम क्या कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कंसीडर्ड किया जाता है ओके. तो इसके बाद जो होगा एफ ब्लॉक के अंदर कंसीडर्ड होगा. तो लास्ट में जो आएंगे वो आएगा प्लैटिनम गोल्ड्स और क्या होगा आपका प्लैटिनम गोल्ड्स एंड मर्करी ओके. इसके बीच में आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं. सो दीज आर कंपोनेंट और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 5D हैं. तो दैट इज 5D1 और 6s2 ओके. सेम एज वेल एज अब इधर आप जरा देख लीजिए ये 4D8 है तो ये क्या होगा 5D8 6s2. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5D10 6s0 and same as 5D10 6s2. So these are the transition elements in your syllabus okay. So देखिए बहुत बड़ा वेरिएशंस है. यहाँ से लैंथेनाइट स्टार्ट होते हैं मगर उसके बाद फिर से एलिमेंट्स क्या होगा स्टार्ट होगा. So these are the transition elements. Their electronic configuration is here. So we are talking about this electronic configuration. यहाँ पे आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का. तो ये 3 सीरीज के एलिमेंट्स आपके सिलेबस में क्या है कंसीडर्ड हैं. ओनली टेक्टिनियम इज अ ह्यूमन बीइंग सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स ओके. अब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस हैं जरा देख लीजिए व्हाट इज एक्सेप्शनल. सो हियर व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द जनरली इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग इन दैट d
d orbitals और their subshells 1 2 3 4 यहाँ पे एक एक्सेप्शनल हो जाएगा 5 5 6 7 8 10 10 okay, so these are some exceptional cases कॉपर इन केस ऑफ द कॉपर। उसके बाद आप यट्रियम से स्टार्ट करेंगे, जिरकोनियम, मॉलिब्डेनम, तो इनका s ऑर्बिटल्स ऐसे रहता है, इलेक्ट्रॉन्स कहां पड़ते हैं d में, और जो लास्ट सबशेल्स होती है दैट सबशेल इज नोन एज द अल्टीमेट सेल्स। न्यू अल्टीमेट सेल्स यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स इंटर करेगा उस सबशेल्स को आप क्या या शेल्स को, लास्ट सबशेल्स को जहां पे इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं जिसे आप वैलेंस शेल्स बोलते हैं, उसे बोलते हैं न्यूक्लियेट सेल्स बोलते हैं। ओके, तो न्यूक्लियेट सेल्स में यहाँ पे ये एंटर करेंगे एंड these are generally transition elements. All these are in your syllabus. Okay, so lots of questions are coming, but here these series are very important and sometimes they are asking you question from their platinum and gold and silver. So see this electronic configurations, इनके electronic configurations के जरा बात करें। So first of all we are talking about there are few electronic configurations of chromium. Why the chromium have 3d54s1? chromium का जो आपका electronic configurations है वो 3d4s2 क्यों नहीं हुआ? Okay, if you are drawing the d orbitals of chromium, so have 5 subshells 1 2 3 4 5. So if you are drawing according to the 3d4, अगर इसको 3d4 के अकॉर्डिंग ड्रॉ करूं तो अगर 4 इलेक्ट्रॉनों को d ऑर्बिटल्स में भरूं और s इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे जो d ऑर्बिटल्स है इसको अपना हाफ फिल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन्स। सो इट्स टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, तो इसका क्या हो जाएगा हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन। सो यू नो अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल द हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इज क्रिएट अ स्टेबिलिटी इन गिवन कंपाउंड। तो इसीलिए इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन को s से d ऑर्बिटल्स में जंप कराकर ये क्या हो गया 3d5। In these conditions, a compound showing a higher stability. तो इसीलिए ये 3d4 4s2 ना होकर क्या हो गया 3d5 4s1। Same as well as in case of copper. Copper के केस में देखिए copper भी आपका सिमिलर केस शो करता है। तो जैसे हम मूव करें तो वहाँ पे 3d9 4s1 क्यों नहीं हुआ? In case of the copper, generally हम क्या लिखना चाहते हैं 3d9 4s2। तो 3d9 4s2 का जो केस है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रॉन फिल करें दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट वन ऑर्बिटल इज नॉट फिल प्रॉपर्ली। यहाँ पे जो एक सबशेल्स है या d का एक ऑर्बिटल्स जो है वो प्रॉपर्ली फिल नहीं होता। इसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपने क्या कहा था 4s2। तो या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो, जो सबशेल्स फिल हो रही है या तो वो हाफ फिल्ड हो या वो फुल फिल्ड हो, एट दैट टाइम द मेटल्स एक्वायर्ड अ स्टेबिलिटी। तो ड्यू टू एक्वायरिंग अ स्टेबिलिटी इट्स टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर एस सबशेल। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ये नहीं रहा, अगर एक इलेक्ट्रॉन एस सबशेल से ले लिया तो ये क्या हो गया 3d10 इट्स गेनिंग अ स्टेबिलिटी एंड हियर 4s1। सो ये बेस्ट है और इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अलाउड नहीं होता because at that time copper minimize their energy and gaining a stability. So due to the acquiring the stability, that's why it's taking one extra electron from s orbital and always showing available in this configuration 3d10 4s1. So that's why they have some exceptional electronic configuration in case of the chromium and copper. Okay. See, the next one is I'm showing you in this electronic configurations. Generally what happen guys, this is Cu, okay, तो Cu में क्या होगा 3d10 and 4s1। तो 3d10 4s1 के हिसाब से जनरली अभी मैंने आपसे क्या बोला कि all the elements are transition elements, but the copper, zinc and mercury, copper, zinc and mercury, the last three, copper, zinc and mercury, or exceptionally we are saying जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, ये तीन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसीडर्ड नहीं करते, फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्टडी किए जाते हैं। व्हाई? बिकॉज हैव यू सीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी? इन केस ऑफ द जिंक, कैडमियम एंड मर्करी दे हैव फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि अदर केसेस में देखिए हर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 3 2 1 5 5 6 7 8, यानी कि d ऑर्बिटल्स में कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाकर मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है. दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. बट इन केस ऑफ द जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 3d10 4s2. कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नो. 3d भी फुलफिल है, 4s भी फुलफिल है, तो ये क्या ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्मेशन करेगा? सेम एज वेल एज इन केस ऑफ द कैडमियम. कैडमियम का भी क्या है? 4d10, ओके, एंड 5s2, and mercury is also 5d10 6s2. So they don't have any unpaired electron, so they are not able to show the properties of like to be transition elements. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खासियत ये है कि उनके d ऑर्बिटल्स में, d सबशेल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं. बट इन केस ऑफ द जिंक, कॉपर, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, दे डोंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दे आर नॉट इंक्लूडिंग इनटू द ट्रांजिशन एलिमेंट. बट हाँ, दे हैव कैपेबिलिटी टू फॉर्म अ मोर कॉम्प्लेक्स. इनकी एक प्रॉपर्टीज जो है वो क्या करती है? मैच करती है, क्योंकि ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं. That's why they are including into the transition series. But if you are talking about on the behalf of the electronic configuration, so they are not to be considered under to the transition elements. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ से बात करें तो इनको इलेक्ट्रॉनिक इनका जो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया जाता. बट इफ आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, ओके, if I am giving you one example, copper. See guys, this one is copper. This is 3d10 4s1. They have one unpaired electron in their s subshells. In the neutral state, okay, in the neutral state, copper के भी neutral state है. But अगर copper 1 electron donate कर दे तो copper पे कैसा चार्ज आएगा? +1. At that time its electronic configuration is 3d10. अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गया? स्टेबल. सो एट दैट स्टेट, that state is known as the cuprous. In cuprous state, the copper is not behaving like to be a transition element. इस स्टेट में कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है. बट अगेन इफ यू आर प्रोवाइडिंग हीट, अगर फिर से मैं इसको हीट करूं और इसके d सबशेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d9. अब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. दिस फेज इज नोन एज द क्यूप्रिक फेज. तो इस क्यूप्रिक फेज में किसकी तरह बिहेव करेगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं इन विच स्टेट दे बिहेविंग लाइक टू बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इन विच स्टेट दे आर नॉट बिहेविंग लाइक टू बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. That's why I'm saying, guys, the cadmium, zinc, mercury, they are not behaving like a transition element because they don't have unpaired electron. And in case of the copper, in the fused state, when they don't have the unpaired electrons, they not behaving like to be a transition elements. इसीलिए जो copper 1+ है, ओके, तो copper 1+ के केस में इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस नहीं होते और ये स्टेट क्या रहती है? स्टेबल स्टेट रहेगी. और जबकि Cu+2 का क्या रहेगा? 3d9, तो ये क्या रहेगा? अनस्टेबल, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस करेगा. और कॉपर आयंस +1 आयंस आपको सॉल्यूशंस में ज्यादा मिलेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाएगा नहीं, इसलिए स्टेबल स्टेट में फॉर्म करेगा. तो दीज आर सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशनल प्रॉपर्टीज. ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज थी जो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को दिखाती हैं और बताती हैं कि विच एलिमेंट्स आर बिहेविंग लाइक टू बी अ ट्रांजिशन एंड विच वन इज नॉट. So this is our first property is complete, is electronic configuration. See the next properties is atomic size. The next properties is atomic and ionic radii. Okay. So your next properties is atomic and ionic radii. So again we are going to draw scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Okay. The next one is yttrium, zirconium, okay. Okay, the next one is
स्टार्टिंग फ्रॉम लैंथेनम, हॉफमेनियम, ओके, टाइटेनियम, फिर ऑस्मियम आएगा, टंगस्टन आता है आपका इसमें, ओके। तो उसके बाद जो लास्ट वाले जो हमारे काम के हैं वो हैं आपके प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। So here we are talking about first of all atomic radii. What happened in case of the atomic radii? You know, जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़े थे तो आपने देखा था 3D1 हो रहा था, फिर 3D2 हुआ, फिर 3D3 हुआ, फिर आपका 3D5 हुआ, फिर 3D5 हुआ, फिर 3D6 हुआ, 3D7 हुआ, 3D8 हुआ, फिर 3D10 हुआ, फिर लास्ट में 3D10 हुआ। मतलब what is the changes is occurring here? The number of electrons are increasing in d subshell or d orbitals. तो d subshells में number of electrons बढ़ रहे हैं। And we know, according to this, when we are moving from left to right in the periodic table, if the number of electron increasing, number of proton also increasing inside their nucleus. So when the number of proton is increasing, they applying a force in outermost shell electron. So they are able to contract. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उसके न्यूक्लियस में क्या बढ़ते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन बढ़ने से प्रोटॉन बाहर के सबशेल्स में क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स, और एटम को, इलेक्ट्रॉनों को कहाँ खींचते हैं, अंदर। और इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ जो सबशेल्स होती हैं, शेल्स होती हैं, वो भी साइज में क्या हो जाती हैं, श्रिंक। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ एटम का साइज भी क्या हो जाना चाहिए, स्मॉल हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज होती है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है, लेफ्ट टू राइट। इन केस ऑफ द ट्रांजिशंस व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू Mn, द साइज इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, बट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, इन केस ऑफ द आयरन टू निकल, द साइज रिमेन कांस्टेंट, दे आर नॉट चेंजिंग, बट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक, द साइज इज अगेन इंक्रीजिंग। पहले तो साइज डिक्रीज हुआ आयरन के Mn तक, मैग्नीज तक आने तक, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल में साइज रहा कांस्टेंट, फिर उसके बाद जब आप निकल से आगे कॉपर और जिंक की तरफ बढ़े तो फिर से साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज। द सेम इज हैपन इन एवरी केस, हियर इज आल्सो द साइज इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एंड हियर इज आल्सो कांस्टेंट एंड सडनली साइज इज इंक्रीजिंग। बट गाइस, फोर्थ सीरीज जो होती है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सीरीज जो है, यहाँ ऐसा नहीं होता। Why? Because when we are moving from lanthanide to hofmanium, lanthanum का एटॉमिक नंबर होता है 52 और hofmanium होता है 72। ओके, सो lanthanide का जो है आपका 57, 72। तो जनरली lanthanide से hofmanium के बीच में कम से कम 12 एलिमेंट्स का गैप है। Why? बिकॉज दीज, इसके बीच के जो एलिमेंट्स लाइज करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल्स में सब सेल्स में मूव करते हैं। तो वो p f ब्लॉक क्या हो गया। अब उसके बाद क्या आता है, जब फिर से d ऑर्बिटल में स्टार्ट होते हैं तो वो कहाँ से होते हैं, हॉफमेनियम से मरकरी की तरफ को। जनरली व्हाट हैपन हियर, द साइज इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, साइज डिक्रीजिंग होता है। इस इफेक्ट को आप कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये आपका f ब्लॉक में आएगा, बट ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस the size here of the element is gradually decreasing. So see, generally, what is the reason behind it? तो यहाँ से यहाँ तक के इफेक्ट को बोला जाता है, यहाँ से आयरन तक के, मैग्नीज तक के इफेक्ट को बोला जाता है ड्यू टू दी Z इफेक्ट। ओके, और यहाँ से आपका कॉपर तक, जिंक तक के इफेक्ट को क्या बोला जाता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक repulsion. Okay, then I am going to explain you about this. ये अभी आपका किसकी बात चल रही है, केवल सीरीज की बात चल रही है। अभी हम ग्रुप में मूव नहीं कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम्स, केवल लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। जनरली गाइस क्या होता है, आई एम शोइंग यू, आपने बोला ये आपका क्या है, बाहर 4s है और ये क्या है 3d। ओके, ये क्या है आपका न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स 4s में तो ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भर रहे हैं आपके, d आपका ऑर्बिटल्स में। तो देखिए इनके केस में क्या है, इफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम, स्कैंडियम्स में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है d में, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो जो इसकी शील्डिंग होती है, शील्डिंग मींस
बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं। तो न्यूक्लियस का जो फोर्स है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा रहता है, क्योंकि अंदर d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कम होने पर न्यूक्लियस अपना इफेक्ट बाहर तक दिखाता है। तो जैसे जैसे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, ये टाइटेनियम का केस है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से न्यूक्लियस का फोर्स भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो पहले एक प्रोटॉन था सपोज, अब ज्यादा प्रोटॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है 2, तो इसकी पुलिंग क्या होगी, और भी ज्यादा होगी। और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डी में बढ़े हैं तो प्रोटॉन भी बढ़े होंगे, तो इसकी पुलिंग और ज्यादा होगी। जैसे जैसे पुलिंग ज्यादा होती है, जो एटम की साइज होता है वो क्या होते जाता है, स्मॉल होते जाता है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, Z इफेक्ट। Here the Z effect is increasing. So what happened when the electrons are increasing in d subshells? Okay, the same at that time the number of proton is also increasing inside the nucleus. जैसे जैसे d subshells में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो प्रोटॉन के बढ़ने से क्या होता है, जो प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को इजीली पुल करेगा। क्यों, क्योंकि अंदर d सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन है कम, तो शील्डिंग क्या होगी, पुअर शील्डिंग होती है, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, जिससे बाहर के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है उसको ज्यादा फेस करते हैं और अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट। और इस अट्रैक्शंस के कारण वो साइज में क्या होते जाते हैं, छोटे। बट व्हाट हैपन, इसी तरह का केस जब हम आयरन से निकल की तरफ को देखें, तो यहाँ पे जो Z इफेक्ट होता है वो किसके बराबर हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के बराबर। यानी कि अगर आप 3d6 की बात करें तो 3d6 में d ऑर्बिटल्स और s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मगर d ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। यानी कि इतने ज्यादा d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कि अब न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर के s शेल के इलेक्ट्रॉनों को पुल नहीं कर पाता। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का इफेक्ट किसने कैंसिल कर दिया, शील्डिंग इफेक्ट ने। तो इन केस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल, द Z इफेक्ट और न्यूक्लियस इफेक्ट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो न्यूक्लियस का इफेक्ट होता है वो कौन कैंसिल कर देता है, शील्डिंग इफेक्ट। और वी से हियर द Z इफेक्ट इज इक्वल टू दिस शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे जो Z इफेक्ट है वो शील्डिंग इफेक्ट के बराबर होने पर इनमें ना तो अट्रैक्शंस हो पाता है ना रिपल्शंस हो पाता है, इसीलिए अपने साइज में क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो ये साइज कांस्टेंट धीरे धीरे क्या होगा, अब देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अब तो और भी न्यूक्लियस अपना फोर्स नहीं लगा पाएगा, फिर से क्या होगा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस फिर भी अपना इफेक्ट और भी खो देता है, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या हो रहा है, कम। पर कॉपर के इफेक्ट में देखिए, अब कॉपर के केस में डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और लास्ट शेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है इसका, 1। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, रिपल। और रिपल्शन होने से दोनों शेल्स क्या हो जाएंगी, उनके बीच में गैप बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि रिपल्शंस लगने से वो अपने आप को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने से नेगेटिव रिपल्शन होने से वो एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर। और दूर जाने से एटम अपने साइज में क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस इफेक्ट जो है, जो Z इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, और कौन सा इफेक्ट बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। तो इसका मतलब यहां से यहां आने तक न्यूक्लियस इफेक्ट ज्यादा था, और यहां से यहां आने तक शील्डिंग और न्यूक्लियस इफेक्ट बराबर था। मगर कॉपर और जिंक में न्यूक्लियस इफेक्ट होगा कम, और कौन सा इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और जिंक के केस में क्या होता है गाइस, इन केस ऑफ द जिंक, अगर हम जिंक की बात करें, जिंक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो बाहर वाले s इलेक्ट्रॉनों को टोटली क्या करते हैं, रिपल करते हैं। न्यूक्लियस का इफेक्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के लगने वाले फोर्स को क्या करेंगे, शील्ड कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे, जिससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इसका फोर्स फील नहीं करेंगे। बट व्हाट हैपन, नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, आपका रिपल्शंस होगा। सो ड्यू टू दिस रिपल्शंस ये शेल्स थोड़ी बाहर की तरफ को क्या करेगी, मूव करेगी। और इस रिपल्शंस को बैलेंस करने के लिए जब सेल्स मूव करती हैं तो देखिए एटम का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। बट इन दैट कंडीशंस, इन दो की कंडीशंस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस का इफेक्ट होता है जिसे आप Z इफेक्ट बोलते हैं, वो बहुत कम हो जाता है कंपैरिजन टू किसके,
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगे, स्कैंडियम से मैग्नीज जाने पे न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा, Z इफेक्ट क्या होगा, मोर कंपैरिजन टू दिस शील्डिंग इफेक्ट। ओके, बट आयरन से निकल आने पर Z इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाते हैं, काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। तो काउंटर बैलेंसिंग होने से ना न्यूक्लियस का इफेक्ट लग पाता है ना शील्डिंग इफेक्ट लग पाता है। तो दोनों इक्वल होने से एटम्स का साइज क्या रहता है, कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि बढ़ता नहीं है, इतना माइन्यूटली इंक्रीज होता है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए ये माना जाता है कि साइज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बट व्हेन वी आर मूविंग कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक जाने पे न्यूक्लियस का इफेक्ट तो हो गया कम क्योंकि शील्डिंग बढ़ गई है, मगर इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने से उनके बीच के नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन, और रिपल्शन होने से सेल अपने साइज में क्या होती है, इंक्रीज। So here the Z effect is greater than the is smaller than the electronic repulsions, इसीलिए अपने साइज में क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। बट गाइस ये तो थी किसकी बात, इन केस ऑफ द पीरियड्स और अराउंड दी सीरीज। बट अगर आप किसी ग्रुप की बात करें, जैसे हम किसी ग्रुप की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या बोला था, ओके, सपोज इसकी बात करते हैं, ऑस्मियम आता है। बट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मूव करने पे क्या होगा, साइज बढ़ेगा। बट कब तक बढ़ता है, जब आप 3 सीरीज से 4 सीरीज में आ रहे हैं, 3rd से 4th सीरीज में, मगर जैसे ही आप 4th सीरीज से 5th सीरीज में आएंगे, साइज फिर से क्या होगा, घटेगा। इट मींस 3rd सीरीज से 4th सीरीज में आने पे साइज बढ़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी। भाई यहाँ पे 3D सीरीज थी, यहाँ पे 4D है, यहाँ 3D d ऑर्बिटल्स थे, नीचे आओगे तो 4D मतलब शेल्स बढ़ रही है, तो साइज बढ़ेगा। बट व्हाट हैपन, रुथेनियम से ऑस्मियम नीचे आने पे जनरली आपका क्या होगा, साइज घटेगा। ऐसा क्यों, ड्यू टू दिस लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, मैंने आपको बताया था हॉफमेनियम, लैंथेनियम और हॉफमेनियम के बीच में क्या आते हैं, लैंथेनॉइड्स, और लैंथेनाइट में कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मींस दे आर डिक्रीजिंग इन देयर साइज, और उसका इफेक्ट यहाँ भी देखने को मिलता है। So due to this lanthanide effect contractions, when we are moving in a groups, the first of all size is increasing 3rd series to 4th series, but when we are moving from 4th series to 5th series, the size is gradually decreasing due to the lanthanide contractions. तो ये क्या है, इनके एटॉमिक साइज है, और सेम आयनिक साइज भी होगा। आयनिक साइज कैसे, अगर किसी एलिमेंट में +1 चार्ज है तो प्रोटॉन बढ़ रहा है तो साइज क्या होगा, छोटा, और एक इलेक्ट्रॉन से अगर और निकाल दिया जाए तो प्रोटॉन और बढ़ गया तो उसका साइज क्या हो जाएगा, और भी छोटा। सो दैट सेम थिंग इज हैपन इन केस ऑफ द एटम्स। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी, एटॉमिक एंड आयनिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसके बिहाफ पे अगर आपका आया कि व्हाई द साइज इज डिक्रीजिंग और आफ्टर दैट इंक्रीजिंग इन ट्रांजिशन सीरीज, तो आप इसका रीजंस दे सकते हैं। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, when we are moving from here to here, the size is decreasing, but after some time it remain constant. But when we are moving from last 2 element, talking about the last 2 element, the size is increasing. Okay, so today's we are completing only 2 topics. The next day we are talking, in the next lecture we are talking about some another topic is also. Thank you.